Assalamualaikum student, our topic for today is volcanism. Volcanism is a type of natural disaster because it also causes destruction to mankind in terms of loss of life and loss of property. First of all, we will talk about what is volcanism. The formation of molten rock material inside the earth and the process of its coming out on the earth's surface is called volcanism. ज़मीन के अंदर जब चट्टानें पिघलती हैं और मैग्मा फॉर्म होता है और मैग्मा प्रेशर के साथ जब ज़मीन के ऊपर आता है एक धमाके के साथ वॉल्केनो से बाहर आता है तो इस प्रोसेस को हम वॉल्केनिज़म कहते हैं. To understand volcanism, you need to understand the volcanic eruption. Look at this diagram. It's showing the inner side of a volcano. And you can see there are different parts involved in it. That is magma chamber, vent, crater cone, ash and gas cloud, and lava. First of all, let me tell you about magma chamber. Magma chamber is a large pool of liquid rock beneath the surface of earth. As you can see that all the magma is placed in chamber. Magma is formed when the earth's mantle melt. Earth mantle means layer of earth, and earth mantle is made up of rocks. So when these rocks melt, it gets together in a large pool which we called magma chamber. ज़मीन की जो तह है जो कि रॉक से बनी हुई है जब वो पिघलती है और उसकी चट्टानें जो है वो पिघलती हैं और वो मैग्मा की सूरत इख्तियार कर लेती हैं तो वो एक बड़े पूल के अंदर इकट्ठी होती हैं जिसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं. The next part is vent. Vent is an opening that allows air, gas or liquid to pass out. You can see in the diagram that it's look like a pipe, and through this pipe magma move upward. Look at the second diagram. From this diagram you can easily understand the vent. Its shape is like a pipe and it connects magma from within the earth crust to earth सरफेस. ये अर्थ के नीचे से लेकर अर्थ के ऊपर तक मैग्मा को पहुंचाने का काम करती है. द नेक्स्ट पार्ट इज क्रेटर कोन. क्रेटर्स आर बाउल शेप डिप्रेशन. क्रेटर्स को उर्दू में हम घड़ा भी कहते हैं. तो ये एक बाउल शेप घड़ा है दैट आर फॉर्म्ड बाय द आउटवर्ड एक्सप्लोजन ऑफ रॉक्स एंड अदर मटीरियल. क्रेटर्स जब वेंट से मैग्मा ऊपर राइज होता है और एक धमाके के साथ बाहर निकलता है, रॉक्स और जो दूसरा मटेरियल है वो बाहर आता है तो ये क्रेटर्स बन जाते हैं, ये घड़े बन जाते हैं जो कि बाउल की शेप की तरह होते हैं. सो देयर आर टू थिंग्स इन्वॉल्व इन द मैग्मा इन दिस प्रोसेस, वेंट एंड क्रेटर्स. वेंट इज़ अ पाइप which pass through the magma and other material, and crater is a bowl shaped depression through which rocks come outward. वेंट एक पाइप है जिसकी वजह से मैग्मा ऊपर आएगा और जब धमाका होगा तो एक घड़ा बन जाएगा बिल्कुल माउंटेन की टॉप पे. एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम दैट क्रेटर्स आर फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ द माउंटेन्स. और इस घड़े से और इस क्रेटर से सारा जो मटेरियल है, रॉक्स हैं, गैस है, ऐश है, वो बाहर आएगा. When magma comes out with an explosion, it becomes lava, and it also produces ash and gas that spread in surrounding areas. Now I hope you are well aware about the parts of volcanic eruption. Let's talk about its process. Magma is formed when the earth's mantle melts. And if magma is thick, gas bubbles cannot easily escape, and pressure builds up as the magma rises. When pressure is too much, an explosive eruption can happen. Students, जब मैग्मा बहुत ज़्यादा थिक होता है तो गैस इजीली एस्केप नहीं कर सकती, गैस वॉल्केनो से बाहर नहीं आ सकती. तो जब सारी गैस इस वॉल्केनो के अंदर ही इकट्ठी होगी तो प्रेशर पड़ेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज़ होता जाएगा तो मैग्मा जो है वो राइज़ होगा, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो एक ज़ोरदार धमाके के साथ जो है वो वॉल्केनो फटेगा और मैग्मा गैस और ऐश के साथ बाहर आ जाएगा. दिस होल प्रोसेस इज़ कॉल्ड वॉल्केनिक eruption. The magma when comes on the surface of earth is called lava.
जब ये मैग्मा एक धमाके के साथ बाहर आता है, आतिशफिशां फटता है और मैग्मा बाहर आता है, तो इसको हम लावा कहते हैं। लावा की सूरत ये इख्तियार कर लेते हैं। लावा बर्न्स एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट कम्स इन इट्स वे। लावा जब बाहर निकलता है तो वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को जला देता है। लावा कूल्स स्लोली बिकॉज लावा इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और ये लावा इतनी आसानी से ठंडा भी नहीं होता क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। समटाइम्स लावा कम्स आउट विद एन एक्सप्लोजन। कभी कभी लावा एक बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ बाहर निकलता है, जिसकी वजह से अर्थ की प्लेट्स में मूवमेंट होती है और अर्थक्वेक भी आ सकता है, ज़लज़ले का बायस भी ये बनता है। Sometimes volcanic ash also comes out with lava and gases during volcanism. कभी कभी वॉल्केनो जब फटता है तो उसके साथ हार्मफुल गैसेस लाइक सल्फ्यूरिक गैस और ऐश भी बाहर आती है, and it spread in surrounding areas and it also cause air pollution. Now we will talk about volcanism in Pakistan. We will see that how many active or non-active volcanoes we have in Pakistan. Pakistan is fortunate that even lying in an active vibrant region, no dangerous and active volcano lies within its boundaries. पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि एक्टिव वाइब्रेंट रीजन में होने के बावजूद हमारी जियोग्राफिक ऐसी है, हमारी जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि हम एक एक्टिव रीजन में हैं जिसमें बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं और प्लेट्स की मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। बट स्टिल हम खुशकिस्मत हैं कि कोई भी डेंजरस और एक्टिव वॉल्केनो हमारे पाकिस्तान में नहीं है। वी ओनली हैव मड वॉल्केनोज, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट वी ओनली हैव मड वॉल्केनोज एंड there is mud inside these volcanoes and these are not dangerous or harmful. However, some volcanic activities have been traced in some places of Hindu Kush mountain ranges and Balochistan. There are some volcanic activities like we have Chandragupta mud volcanoes in Balochistan and in the surrounding areas of Hindu Kush, and it is situated in the Lasbela district. We only have these mud volcanoes in Pakistan and there is mud inside these volcanoes, so these are not dangerous. These volcanoes are not dangerous, so we only have mud volcanoes, and Chandragupta mud volcanoes are famous in Balochistan areas. Let's talk about the safety measures which we should adopt to mitigate the loss of life and property. To mitigate loss of life and property in areas vulnerable to volcanism, an integrated monitoring system of volcanoes has been adopted throughout the world. वो इलाके जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज मौजूद हैं उन इलाकों में एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लगाया जाता है, जिसकी वजह से इस सिस्टम के थ्रू पता चल सकता है कि वॉल्केनो के अंदर कितना ज़्यादा प्रेशर है, कितना ज़्यादा मैग्मा राइज हो रहा है और ये वॉल्केनो जल्दी फटने वाले हैं या नहीं है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम पूरी दुनिया में अडॉप्ट किया जाता है ताकि लोगों की जान और माल को बचाया जा सके। अगर देखें इस सिस्टम के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि वॉल्केनो जो है वो एक्टिव है और वो कब एक्सप्लोड होगा, तो हम एक वार्निंग जो है वो इशू कर देंगे सराउंडिंग एरियाज़ में, ताकि लोग जो हैं वो उस एरिया से जो है वो मुंतकिल हो जाएं किसी सेफ़ एरिया की तरफ, ताकि लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी कम से कम हो। In case of emergency, a warning is given in the hazard zone to prepare people to combat the disaster. जब एमरजेंसी होती है, जब वॉल्केनो एक्सप्लोड होने वाला होता है तो वार्निंग इशू की जाती है, ऐलान करवाए जाते हैं या टीवी के थ्रू वार्निंग्स इशू की जाती हैं ताकि लोग इस तबाही का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएं। और तैयार कैसे हो जाएं, वो अपने आप को सेफ़ एरियाज़ में मूव कर लें, वो अपने माल को, अपने जानवरों को, खुद को एक सेफ़ एरिया की तरफ मुंतकिल कर सकें ताकि कम से कम जानी और माली नुकसान हो। Okay students, here I want to discuss some interesting facts about volcanoes with you. Did you know there are more than 1500 active volcanoes on the earth? ज़मीन पर इस वक्त 1500 एक्टिव volcanoes जो हैं वो मौजूद हैं। The world's largest active volcano is Mauna Loa in Hawaii.
हवाई के मुकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है जिससे हम मोना लो कहते हैं, एंड इट इज़ द टॉलेस्ट फ्रॉम माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा टॉल है ये पहाड़, ये वॉल्केनो। I hope you enjoyed this video. Thanks for watching.